Namaskar, this is CVR English and you are watching Prime Time with me Anukriti Sharma. And now it's time to take a look at the headlines first. A rift has emerged between Maharashtra Deputy Chief Ministers Ajit Pawar and Devendra Fadnavis ahead of the assembly polls. Delhi has woken up to grab stage 3 restrictions as the city's air quality remained in the severe category for the third consecutive day. 6 students killed and 1 injured in a car-truck collision in Dehradun. Student's car was rammed and BMW rear-ended a truck at high speed. Donald Trump picks vaccine skeptic Robert Kennedy Jr. for Health Secretary as the president-elect. Viewers, Union Home Minister Amit Shah has addressed the ongoing issue of Naxalism in India, particularly focusing on the Gadchiroli region, which has long been affected by the insurgent activities. Shah praised the efforts of Prime Minister Narendra Modi in combating Naxalism, stating, and I quote him here, Gadchiroli was suffering from Naxalism for 3 years, but PM Modi has worked tirelessly to eliminate it. Whatever is left in Chhattisgarh, we will finish it before 31st of March 2026, I unquote. The Home Minister further emphasized the government's commitment towards eradicating Naxalism in the area, which he described as a significant form of terrorism and left-wing extremism from the country. Under Modi's leadership, Shah has asserted that India has made substantial progress in freeing the nation from the grip of both terrorism and Naxalite violence. The government's determination to eliminate the remaining pockets of the Naxal influence by the year 2026 now highlights their focus on security and stability in these affected regions. पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, भैया टीवी वाले सेट करके बैठ जाओ जरा, सेट कर बैठ जाओ यार, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। विनय कुमार सक्सेना जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान बैजयंत पांडा जी, श्री मनोज तिवारी जी, बहन कमलजीत जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेश चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़े हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और
इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा Union Minister and Bharatiya Janata Party National President JP Nadda recently addressed a gathering, highlighting the contrast between the responses to terrorist attacks under the UPA and the NDA governments. Referring to the 26/11 Mumbai attacks, Nadda criticized the previous Congress-led UPA government for repeatedly sending dossiers to Pakistan, while the 2008 terrorist Ajmal Kasab was even served biryani. In contrast, he praised Prime Minister Modi ji for taking swift and decisive action, citing the surgical strike in UD within 15 days of the attack and the airstrike in Pulwama, where Pakistan remained silent. Nadda further accused the Congress leaders of demanding proof for such actions and said, and I quote him here, while opposing the NDA, the Congress has started opposing the country itself. I unquote. Watch this. महाराष्ट्र में सरकार चली है, उसने विकास को धरती पर उतारा है। और मैं हमेशा बोलता हूं, डबल इंजन के सरकार का इंपैक्ट समझिए। और जब मैं डबल इंजन सरकार के इंपैक्ट बताना चाहता हूं तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ये अगाड़ी ने बैक गियर लगाया था मुंबई मेट्रो की कि नहीं लगाया था, कि नहीं लगाया था? आप बताइए धारावी पुनर्विकास को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए बुलेट ट्रेन को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए कोस्टल रोड को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए पुणे आउटडोर लिंक रोड को रोका था कि नहीं रोका था? नवी मुंबई एयरपोर्ट को रोका था कि नहीं रोका था? अटल सेतु को रोका था कि नहीं रोका था? और तो और छोड़िए, ये जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, इसके खिलाफ कोर्ट में गए कि नहीं गए? अब आप बताइए, इन लोगों ने सब चीजों को रोकने का काम किया कि नहीं किया? अब 20 तारीख को इनको रोक देना, इसकी चिंता कर लेना। Defence Minister Rajnath Singh recently addressed key issues concerning national security and the ongoing debate on the caste census. On the issue of infiltrators, Singh reaffirmed the government's commitment, saying, and I quote him here, "It's our priority and we have stated it in our manifesto that we will mark them, that is the infiltrators, and deport them out of the country's borders." I unquote. Well, regarding the Congress leader Rahul Gandhi's remarks on the caste census, Singh criticized that move, claiming that it was an attempt to divert the attention of the people. He said, and I quote, "By talking repeatedly about the caste census, I think he is trying to deviate the people of the country. He should make it clear what the blueprint he has, how he plans to divide the percentage of the reservations among the eligible castes." I unquote. Singh has now challenged Gandhi to present a clear-cut plan, suggesting that it would be better for a nationwide debate rather than merely shifting focus from the critical issues of the country. बाहर करेंगे। सर, जाति जनगणना को लेकर आज राहुल के भी बयान आए कि इससे देश का चेहरा बदल जाएगा। आपके भी भाषण हमने सुना कि अभी जाति जनगणना को लेकर देखिए, जातिगत जनगणना की बात करके मैं समझता हूं देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे देश की सारी जातियों को जो आरक्षण के लिए योग्य हैं, उन सारी जातियों को कितने कितने % आरक्षण का लाभ वो मुहैया कराएंगे। पहले इसकी जानकारी तो दें, पहले इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, रूपरेखा तैयार करके देश के सामने आए, ताकि उस पर सारे देश में एक बहस हो सके। Railways Minister Ashwini Vaishnav recently heightened the significance of Maharashtra in India's infrastructure development, especially with Mumbai being the country's financial capital. And speaking about the Government of India's initiatives, Vaishnav emphasized that the state is receiving substantial attention in terms of railway infrastructure. He revealed that a massive amount of 1.64 lakh crore rupees
is now being invested in the state's railway sector with over 6,000 kilometers of new projects underway. Additionally, 132 railway stations are now being redeveloped and 318 flyovers and underpasses are now being constructed to improve connectivity across the region. Vaishnav also mentioned key projects such as those of 156-kilometer bullet train stretch and a 178-kilometer freight corridor, both of which will significantly enhance transportation efficiency across Maharashtra. Furthermore, the recent rail connectivity projects in the Marathwada region, including Jalna, Jalgaon and Ajanta, along with the Manmad-Indore railway line, are expected to boost port connectivity in the northern region of Maharashtra, including Dhule, driving economic growth in the region. बहुत एम्फेसिस है, हाईवेज का भी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। पोर्ट में वारवन पोर्ट अपने आप में दुनिया का टॉप 10 पोर्ट्स में से एक बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे टेलीकॉम हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे हो, मेट्रोज हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, महाराष्ट्र में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और पूरे भारत में, स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसके बारे में बताइए, कैसे क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या लोगों के लिए जनहित योजनाएं हैं? देखिए, महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए और राज्य सरकार की उसमें मदद के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप केवल रेलवे की ही बात करें तो अकेले रेलवे में 1,64,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। इसमें अगर हम देखें करीब करीब 6,000 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें और 132 स्टेशंस एकदम रीडेवलप हो रहे हैं, तो पूरी की तरह से नए बन रहे हैं। 318 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेट कॉरिडोर का 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी भी हाल ही में जालना, जलगांव और अजंता रेल कनेक्टिविटी से जो हमारा मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। फिर मनमाड, इंदौर से धुले और जो उत्तर महाराष्ट्र है उन सबको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ओवरऑल महाराष्ट्र के लिए भारत सरकार और महाराष्ट्र की तरफ से रेलवे का डेवलपमेंट का बहुत एम्फेसिस है, हाईवेज का भी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। पोर्ट में वारवन पोर्ट अपने आप में दुनिया का टॉप 10 पोर्ट्स में से एक बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे टेलीकॉम हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे हो, मेट्रोज हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, महाराष्ट्र में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और पूरे भारत में, स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसके बारे में बताइए, कैसे क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या लोगों के लिए जनहित योजनाएं हैं? देखिए, महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए और राज्य सरकार की उसमें मदद के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप केवल रेलवे की ही बात करें तो अकेले रेलवे में 1,64,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। इसमें अगर हम देखें करीब करीब 6,000 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें और 132 स्टेशंस एकदम रीडेवलप हो रहे हैं, तो पूरी की तरह से नए बन रहे हैं। 318 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। Shifting focus now to the heartland of the country, Haryana's Chief Minister Nayab Singh Saini expressed his happiness on the occasion of the 555th Prakash Purab of Saint Guru Nanak Dev Ji, extending his best wishes to everyone celebrating this special day today. The Chief Minister also made a very important announcement, revealing that the Haryana government has now decided to name the 500-bed hospital in Gurugram after Guru Nanak Dev Ji.
Now, this grand gesture is a tribute to the great spiritual leader, of course, and his teachings, reflecting the state's commitment to honoring his legacy and the values that he stood for. आज गर्व है कि ऐसे महान संत गुरु नानक देव जी के 555वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। पंजाबी टीचरों की जो बात कही गई सर, ये पहली बार इस तरह इतने बड़ी संख्या में हमने 104 पंजाबी के टीचर अभी पिछले दिनों लिस्ट निकली थी, उसके अंदर उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है और हमारे यहाँ और भी अगर कोई आवश्यकता होगी उसको भी पूरा किया जाए। सर, आज कोई घोषणा भी करी गई किसानों को लेके, कुछ कौन डाला गया है? आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के इस अवसर के ऊपर हमने गुरुग्राम में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है उसका नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से रखने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और आज हमने जो किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने पिछले दिनों 500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में एक किस्त भेजी थी। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर दूसरी किस्त 300 करोड़ रुपए की हमने जारी की है। जल्दी ही वो उन तक पहुंच जाएगी और 10-15 दिन में जो शेष बचे हैं वो पैसा भी तीसरी किस्त हम जारी करके उन तक किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1380 करोड़ रुपया हमने बोनस के रूप में किसानों को, पिछले दिनों किसान का खर्चा कम हो, उसकी पैदावार बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हमने जारी किया है। मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। ये देख ले Today, on the occasion of Dev Deepavali, a grand ceremony took place at Varanasi's Namo Ghat, where several prominent leaders gathered to celebrate this festival. Vice President Jagdeep Dhankar and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ji, along with Governor Anandiben Patel and Union Minister Hardeep Singh Puri, lit the earthen lamps or the diyas, adding to the beauty and the spiritual significance of this event. The ghats of Varanasi were beautifully illuminated with thousands and thousands of diyas as devotees offered their prayers and celebrated the Diwali of the gods, that is the loose English translation of Dev Deepavali, marking the victory of light over darkness. से पहले जो वादा किए थे तेलंगाना जनता को, इसमें कोई वादा पूरा नहीं किया है। आज तेलंगाना का स्थिति इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। किसानों का जो किसानों को पर एकड़ को 15,000 देने का वादा किया, आज तक एक किसान का भी पैसे नहीं मिला है। वो टेनेंट फार्मर हो, एग्रीकल्चर फार्मर हो, उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। महिलाओं को और महालक्ष्मी के नाम पर 2,500 रुपीस हर महीने देने का वादा किया। एक महिला को अभी तक 1 साल हो रहे, अभी तक काम शुरू नहीं किया, एक महिला को बेनिफिट नहीं मिला। बेरोजगार को हर महीना 2,500 रुपए दे तुम बोले, अभी तक एक बेरोजगार को पैसा नहीं मिला। ऐसी कॉलेज जाने वाले गर्ल्स को स्कूटी देंगे, शादी में एक 10 ग्राम्स का गोल्ड देंगे और पेंशन 2,000 से 4,000 करेंगे। अलग अलग वायदा किया है, एक वादा भी पूरा नहीं किया। मगर राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में जाकर झूठ प्रचार कर रहे, तेलंगाना में 6 गारंटीज इंप्लीमेंट हुआ बोल के, फिर ऐसी हम महाराष्ट्र में भी इंप्लीमेंट करेंगे, वोट डालो बोल के बिल्कुल झूठ प्रचार कर रहे, बेशरम प्रचार कर रहे दोनों मिलकर। कांग्रेस पार्टी
अनाउंस केल्यानंतर आपण सत्ता पे आए तो सिलेंडर बांग्लादेश में रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में जाकर तेलंगाना का मुख्यमंत्री तेलंगाना में जो असेंबली चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में आने से पहले जो वादा किए थे तेलंगाना जनता को, इसमें कोई वादा पूरा नहीं किया है। आज तेलंगाना का स्थिति इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। किसानों का जो किसानों को पर एकड़ को 15,000 देने का वादा किया, आज तक एक किसान का भी पैसे नहीं मिला है। वो टेनेंट फार्मर हो, एग्रीकल्चर फार्मर हो, उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। महिलाओं को और महालक्ष्मी के नाम पर 2,500 रुपीस हर महीने देने का वादा किया। एक महिला को अभी तक 1 साल हो रहे, अभी तक काम शुरू नहीं किया, एक महिला को बेनिफिट नहीं मिला। बेरोजगार को हर महीना 2,500 रुपए दे तुम बोले, अभी तक एक बेरोजगार को पैसा नहीं मिला। Well, that's a wrap on this prime time with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.